Hey guys, good morning and welcome you to the new vlog. Today is 2nd of December and it's UAE's National Day. So fortunately we got few days off from work and I thought like to spend these days in Saudi Subscribe Arabia to to my perform channel. Umrah. So we are almost done with the packing and it's early morning 6 o'clock. Some Chinese people are doing some exercise and playing some music also. So me, Rehan and the family will be going to Saudi Arabia, Mecca. I'll be having a break in Riyadh for a night, and then the next day I'll be starting from Riyadh to Mecca. And we are planning like to have 2 days stay in Mecca after performing the Umrah, and then we'll be coming back to Riyadh, and then we'll be coming back to Dubai. So it's almost like we are planning to have a journey of almost 5 days, and we are again planning it, through the road, and we'll be using our car in order to get more videos, to capture more places and to share it with you guys. So I've actually kept some of my luggage already. Let me show you what I have kept there, and that would help you guys also who is planning to go to Saudi, by car. So this is actually my bag and I've kept my clothes over here, and this is all the stuff I kept for my car, like the air gauge checking, the power cables, and the air pressure machine. This is the fire extinguisher I have kept, like to be on a safe side, and some more stuff which is related to the journey. And there are some more things at home which I'll be taking it now. And we have got a lot of snacks also because it's a very long journey. So I'll keep you posted. Stay tuned and let's see what we see on the way. So guys, we have already started our journey. We got a little bit late. We were supposed to start at 6 o'clock, but due to some Subscribe to my reasons, channel. we got a little bit late and we started at 7 o'clock. And now we have almost covered like 250 kilometers. So we crossed the place which is called Mirfa. I believe it will take around 2.5 hours to reach the border, Al-Batta border. So now I'll show you the road. It's almost like 160 kilometer per hour, the speed limit. And before this it was 140 kilometer per hour. So we are keeping our car in limit in order to avoid the fines. So let me show you the road. So this is how it looks like. जी गाइस, ये देखिए, ये मेरा जो शहजादा Subscribe है, to my channel. रेहान साहब को भूख लगी हुई है, पता नहीं क्या कुछ बोल के बैठे हुए हैं। ओए, क्यों मत किया रेहान? क्या हुआ? शर्मा रहे? तो रेहान को भूख लगी हुई थी। रेहान ने पता नहीं कुछ रोल सैंडविचेस निकाल के बस भोजन स्टार्ट किए इन्होंने। जी गाइस, तो अभी हम बॉर्डर पहुंचने वाले हैं। मेरे ख्याल से कोई 100 किलोमीटर शायद रहता होगा या 120 किलोमीटर। तो ये देखिए, ये कुछ ऐसी जगह है यहाँ पे, ऑलमोस्ट सारा सहरा ही है। जी फ्रेंड्स, तो हमने बॉर्डर को क्रॉस कर लिया है, और बॉर्डर को क्रॉस करने के बाद तकरीबन मेरे ख्याल से 1-1.5 किलोमीटर में आप ये पेट्रोल स्टेशन पे पहुंच जाएंगे। ये पीछे आपको शायद नज़र आ रहा होगा। तो ये यहाँ पे आपको मस्जिद भी मिलेगी Subscribe to my channel. और ग्रोसरी शॉप्स भी है, कॉफ़ी शॉप भी है, आपको सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आपने सिम वगैरह लेनी हो तो भी यहाँ से ले सकते हैं। ये पीछे मेरे देखते हैं, ये मस्जिद है। तो दोपहर के 1 बज रहा है अभी। तो दोपहर के 1 बज रहे हैं और हम जो है यहाँ पे हमने नमाज़ पढ़ी, खाना खाया, और अब यहाँ से हम निकल रहे हैं रियाद के लिए। जी फ्रेंड्स, तो ये है यहाँ की रोड्स की हालत। तो आप पत्ता से आगे होते हैं
बॉर्डर के बाद तकरीबन 1-1.5 घंटा चलने के बाद आपको रोड कुछ इस सिचुएशन में मिलती है। तो आप हार्डली 100 टच कर पाते हैं क्योंकि रोड की हालत बहुत ख़राब है। जैसे कि आप देख सकते हैं, आप इस पे तेज़ नहीं जा सकते क्योंकि बहुत गड्ढे बने हुए हैं। ये देखें, क्या बात है। हमने थोड़ा गिला क्या किया और बिल्कुल ही कारपेटेड रोड स्टार्ट हो गई है, बिल्कुल नई बनी हुई है। मज़ा आ गया माशाल्लाह, बहुत प्यारी रोड बनाई है इन्होंने। अभी पता नहीं कितने किलोमीटर तक है लेकिन बड़ी बहुत मज़े की है। जी फ्रेंड्स, लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे से बॉक्सेस जो लगे हुए हैं। ये वाले कैमरे आज से तकरीबन 6 महीने पहले नहीं थे, लेकिन अभी ये देख सकते हैं इन्होंने यहाँ पे कैमरे लगा दिए हैं। तकरीबन हर 5-6 किलोमीटर के बाद यहाँ पे आपको कैमरास मिलेंगे। जी व्यूअर्स, अगेन से हम उधर ही उसी जगह पे आ गए हैं जो मैंने लास्ट वीडियो में लास्ट ट्रिप में शेयर किया था। ये सामने देखिए, मुताम अल करवान, पिंडी अल करवान रेस्टोरेंट। अभी मैं एग्जैक्टली लोकेशन बता सकता हूँ कि ये जो रास्ते में अलखर्ज आता है, अलखर्ज जगह जो है उससे तकरीबन कोई 150-140 किलोमीटर पहले आती है ये जगह। तो मैं अभी पेट्रोल डालने के लिए फिर से रुका था। खाना मैंने खा लिया था, अदरवाइज तो यहाँ पे खाना खाने का मज़ा आता, लेकिन वो तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, एग्जैक्ट लोकेशन जो है इनकी, ये अलखर्ज से तकरीबन 150-140 किलोमीटर पीछे ही आता है। राइट साइड पे सेस्को पेट्रोल स्टेशन है, उसी के अंदर है। ये रियाद से तकरीबन आई थिंक 150 किलोमीटर पीछे हैं हम। Subscribe to my और channel. ये रेहान देखे, ये शरारतें देखे इसकी, फिर से बाहर निकला हुआ है। और ये सामने आप लोगों को ये जगह नज़र आ रही है ना, ये पूरा जो है रेल का ट्रैक है। जितने भी कंटेनर्स वगैरह हैं अभी मोस्टली जो है इस ट्रेन के ज़रिए जो है ट्रांसपोर्ट हो रही हैं। रास्ते में हमने देखा है लेकिन शूट नहीं कर पाए थे, आई थॉट कि आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए। तो शाम का टाइम है, दुबई के टाइम के हिसाब से 5 बज रहे हैं, लेकिन सऊदी के टाइम के मुताबिक अभी 4 बज रहे हैं। ये फ्रेंड्स सनसाइड का टाइम, हम अभी अलखर्ज के पास है। असल की नमाज के लिए रुके थे। अब बहुत प्यारा सनसेट का टाइम मिल गया, चले आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। जी फ्रेंड्स, तो शाम को हम कल पहुंच आए थे तकरीबन 7 बजे रियाद में। एज़ प्लान्ड हमने Subscribe रात to my रियाद में करनी थी, तो channel. हमने रियाद में स्टे किया क्योंकि हमें थोड़ा आराम करना था। अकेले था, दूसरा ड्राइवर भी साथ में नहीं था, तो इसलिए हमने मुनासिब समझा कि यहाँ पे स्टे किया जाए। तो ये पीछे आप देख सकते हैं, ये हमारा विला है रियाद में हमारी कंपनी का। तो हमने यहाँ पे स्टे किया और बस अभी यहाँ से सुबह के दुबई के टाइम के हिसाब से 7 बज रहे हैं, लेकिन यहाँ के हिसाब से 6 बज रहे हैं। तो अर्ली मॉर्निंग हम रेडी हों ताकि इंशाल्लाह हम शाम तक पहुँच सकें, वहाँ पे होटल लें और अपना सामान वामान रख के इंशाल्लाह तो हम उम्रा अदा करें। तो अभी फ़िलहाल हमारी गाड़ी जो है वो गर्म हो रही है और हमें थोड़ा सा वेट करना होगा। और साथ में रहिए, इंशाल्लाह आगे भी आपको दिखाते हैं अपना सारा जो हमारा जर्नी रहेगा। जी गाइस, तो हम ट्रैफिक में अभी फंस गए हैं। सुबह का टाइम है और काफ़ी ट्रैफिक है। ये रियाद सिटी से हम निकलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन काफ़ी स्टक हो गए थे। ये बिल्कुल हमारे नीचे जो रोड जा रही है किंग अब्दुल अजीज़ रोड है। और बस हम अभी रियाद सिटी में इंटर होने वाले हैं। इनफैक्ट ये भी सिटी का पार्ट ही है। यहाँ से निकलने के लिए हमें पता नहीं कितना टाइम लगेगा। हर लेन मेरे ख्याल से कोई 5-5 लेन्स की इन्होंने रोड्स बनाई हुई हैं ये ऑपोजिट साइड पे, और सारी बिल्कुल ब्लॉक्ड है। ये आप देख सकते हैं। मेरे ख्याल से रियाद में जो एंट्री है ना वो बहुत ही डिफिकल्ट है, क्योंकि जो लोग जिस तरह से मैं गाड़ियों को देख रहा हूँ और मुझे बहुत मुश्किल लग रही है। पता नहीं इन लोगों को कितना टाइम लगेगा रियाद में एंट्री के लिए। बहुत प्यारा मंजर है, ये देखिए, ये दो पहाड़ों के बीच में रोड गई हुई है और नीचे इलाका क्लियरली नजर आ रहा है।
कि आप जैसे ही रियाद से निकलते हैं तो आप आगे जो है आपको ये वाला सारा सीन मिलता है। ये मेन हाईवे पे है अभी, पीछे आप देख सकते हैं ये पहाड़। जी गाइस, हमें पाकिस्तानी खाना तो नहीं मिल रहा था, कहीं से कुछ अरेबिक खाना मिला। ये माशाल्लाह, ये देखें, ये एक, दो, तीन, बहुत ही बड़ा सा जो है रोटी हमें मिली है। पराठा तो नहीं, आई थिंक रोटी है, पराठा है, पता नहीं क्या भी है। और हमारे गले थोड़े से ठीक नहीं थे, इसलिए हमने जो है वो विदाउट मिल्क की चाय उठाई, ताकि हमारे गले जो है थोड़े बहुत ठीक हो जाए। सो टाइम शॉर्ट है, हमने जल्दी से नाश्ता करके निकलना है ताकि हम इंशाल्लाह शाम तक जो है वो रियाद पहुंच सके। रेहान को काफ़ी भूख लगी हुई है और रेहान काफ़ी मज़े से खाना खा रहा है। बहुत ही प्यारा मौसम है, ठंडी सी हवा लग रही है। लास्ट टाइम जब मैं आया था तो Subscribe to my काफ़ी गर्मी थी, channel. लेकिन इस दफ़ा बहुत ही मज़ा आ रहा है। बहुत ही प्यारा मौसम है। इस तरह पाकिस्तान में मौसम बहार होती है ना, वैसे ही है बस ऑलमोस्ट। बहुत मज़े का मौसम है। ये अभी हम ताइफ हमारे लिए मेरे ख्याल से कोई तकरीबन 400 किलोमीटर रहता होगा। हम अभी रास्ते में रुके, बस अभी यहाँ से निकलेंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा मंजर। ये देख सकते हैं कितनी सैंड स्टॉर्म है। काफ़ी सैंड जो है रोड पे आ रही है, हमें जाने में भी मुश्किल हो रही है क्योंकि रोड दिखाई नहीं दे रहा। ये देख सकते हैं। तो देखिए कितने प्यारे से प्ले एरिया इन्होंने बनाए हुए हैं यहाँ पे बच्चों के लिए। जी गाइस, तो एज मेंशन्ड बारिश जो है वो स्टार्ट हो गई है और बस हम मिकात भी पहुंच गए हैं। तो इंशाल्लाह यहाँ पे हम एहराम बांधेंगे और यहाँ से निकलेंगे इंशाल्लाह। तो बहुत ही मज़े का मौसम, बहुत ही प्यारी जगह और बहुत अच्छी जगह पे। ये देखिए लोगों ने जो है ये एहराम बांधे हुए हैं और बस यहाँ से निकल रहे हैं। तो हम भी अपनी गाड़ी इधर ही पार्क करते हैं और अंदर जाके गुस्ल वगैरह करके रेडी होके एहराम बांध के तो बस निकलते हैं फिर इंशाल्लाह। जी गाइस, माशाल्लाह हम पहुंच गए हैं मिकात। और जैसे आप पीछे देख भी सकते हैं, लोगों ने एहराम बांधे हुए हैं और यहाँ पे बस सब रेडी हो रहे हैं और यहाँ से एहराम बांध के वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। ये हमारे भाई जो है सबकी खिदमत कर रहे हैं, यहाँ पे सफाई कर रहे हैं और बस यहाँ अभी हम गुस्ल करेंगे, रेडी होंगे और यहाँ से भी निकलेंगे इंशाल्लाह। तो ये पीछे का पूरा मंजर आप देख सकते हैं। लास्ट टाइम जब मैं आया था वो एक दूसरी जगह थी मिकात, उन्हें यहाँ पे मेरे ख्याल से दो तीन है। तो वो जगह इतनी ग्रीन नहीं थी, लेकिन ये माशाल्लाह बहुत प्यारी जगह है, बहुत प्यारा मंजर और बहुत प्यारा मौसम। हल्की हल्की सी एक एक बूंद जो है वो बारिश आ रही है, बहुत मज़ा आ रहा है। ये मिकात के शावर लेने की जगह है और वो सामने मस्जिद है। तो उम्रा करने से पहले यहाँ पे 2 रकत नफल पढ़ने पड़ते हैं और हमने एहराम भी बांध दिया है। बारिश हो रही है, हल्की हल्की सी बारिश हो रही है और आप ये बादल देख सकते हैं, कितना प्यारा मौसम बना हुआ है। Subscribe to my तो मैंने channel. कहा था कि रास्ते में भी कि इंशाल्लाह बारिश होनी है। माशाल्लाह बारिश हुई है और बहुत मज़े का मौसम है, आप देख सकते हैं। जी माशाल्लाह, ये रेहान साहब हमारे रेडी हो गए हैं, इन्होंने भी आराम बांध दिया है और इनको काफ़ी ठंड लगी हुई है ना, इनको ठंड लगी हुई है तो इनको वापस गाड़ी में भेजते हैं। ठीक है, आपको कैसे लग रहा है? अच्छा लग रहा है? सर्दी लग रही है? जाए गाड़ी में बैठे, शाबाश। तो माशाल्लाह हमने आराम बांध दिया है और हम रेडी हो गए हैं उम्रा के लिए। मुझे अभी एक मैसेज आया कि बहुत गरज चमक के साथ बारिश होनी है और हाँ बिल्कुल
बहुत गरज चमक हो रही है मक्का की साइड पे। तो इंशाल्लाह 1 घंटे 1.5 घंटे में हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे और इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। Subscribe to my channel. अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच गए हैं मक्का मुकरमा और हमने अपनी गाड़ी पार्क कर ली है। जो भी दोस्त कहीं से भी बाय रोड आ रहे हो तो उनके लिए ये सबसे बेस्ट जगह है। इस जगह को बोलते हैं खुदाई पार्किंग। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। बाकी जो है मक्का में पार्किंग बहुत एक्सपेंसिव है। कुछ होटल्स देते हैं लेकिन वो काफ़ी एक्सपेंसिव होटल्स होते हैं। तो ये खुदाई पार्किंग के नाम से जगह है। आप गूगल मैप्स पे भी सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगी। यहाँ पे आप अपनी गाड़ी को जो है पार्क कर सकते हैं और यहाँ से आपको फ्री शटल बस भी मिलेगी। बस उसमें बैठ के आप हरम शरीफ जा सकते हैं। जी फ्रेंड्स, ये एक चीज़ को मैं करेक्ट करना चाहूँगा। ये पहले मैंने बोला था कि फ्री शटल बस है। जब लास्ट टाइम मैं आया था तो ये फ्री थी, यहाँ पे कोई चार्जेस नहीं लेते थे। लेकिन अभी जो है ये पर हेड 4 दिरहम चार्ज कर रहे हैं। आई मीन 4 रियाल चार्ज कर रहे हैं। सो इट्स नॉट फ्री एनी मोर। और ये इसके लिए 4 रियाल जो है वो चार्ज कर रहे हैं। सो बस आपको उधर खुदाई पार्किंग से टैक्सीज भी मिल जाती हैं, वो खुद आते हैं वहाँ पे। लेकिन बेहतर है आप बस को ले लें, ज़्यादा चार्ज भी नहीं करते और आप इजीली पहुँच जाते हैं। रेहान अभी हमारे साथ बैठे हुए हैं और हमने अभी बस ली है खुदाई पार्किंग से और हम अभी जा रहे हैं होटल लेने के लिए, राइट। तो रेहान जो है वो खुश है कि नहीं खुश? हाँ, खुश है। अच्छा, पपी देंगे बाबा को? हम ये बस Subscribe to my channel. ये हमारी बस थी जिससे हम उतरे और ये बिल्कुल ये क्लॉक टावर के बिल्कुल नीचे इन्होंने हमें उतारा है। ये सामने देखिए और यहाँ से हार्डली मेरे ख्याल से 5-7 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस होगा तो आप जो है हरम शरीफ पहुँच जाते हैं। तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन कि आप बस ले लें और डायरेक्टली चले जाएँ।